شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کا بابرکت نام، یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے۔ بدقسمتی اور تکلیف سے بتانا پڑتا ہے کہ یہ جو گھروں میں چھوٹے ہوتے ہیں، اگر یہ کسی غریب کے گھر میں ہو تو یہ وقت سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کو گھر کی وہ ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں جو در حقیقت چھوٹوں کی نہیں ہوتی، لیکن ان کو ادا کرنی ہوتی ہیں کیونکہ وہ گھر کے چھوٹے ہونے کے باوجود عمر سے پہلے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں۔ مسائل، اذیتیں، تکالیف، پریشانیاں، اور پھر ایک غریب کا بیٹا یا بیٹی جو ہے، خاص طور پہ جو بڑا بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک بینچ مارک اس معاشرے میں سیٹ ہوتا ہے کہ تمہیں کچھ کرنا ہے، تمہیں کچھ کرنا ہے، تمہیں اپنی فیملی کو اپ لفٹ کرنا ہے، تمہیں اپنے خاندان، قبیلے کو اذیت، تکلیف اور پریشانی سے نکالنا ہے اور اس کو ایک بہتر سمت میں ڈالنا ہے۔ اور پھر آج رائے کی ایک بچی جو ہے، اس کے حوالے سے اطلاع مل رہی ہے، گھر کی بڑی بیٹی تھی، عمر صرف اور صرف 17 سال، یعنی قانون کی نظر میں وہ مائنر تھی، اپنی جان سے جاتی ہے۔ کام ڈور سٹیپس پر جا کر ڈور ٹو ڈور موبائل کمپنیز کی سمیں، مفت سمیں، آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ بس اڈے پہ بھی، ہسپتال کے باہر بھی، بازار میں بھی سٹال لگا کے کھڑے ہیں، جی سم لے لو، سم لے لو، سم لے لو۔ اس بچی کا کام تھا کہ اس نے سمز جا کر لوگوں کو دینی ہے تاکہ کمپنی کی تشہیر ہو، اور اس کے بدلے میں اس کو ظاہر ہے گھر چلانے کے لیے، ایک کمرے کے گھر کو چلانے کے لیے والد بوڑھے باپ کو معذوری کے شکار معلوم ہو رہے، والدہ ان کو سنبھالنے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنی تھی۔ لیکن پھر اس تمام کہانی میں ایک کریکٹر آتا ہے، جس کریکٹر کے ساتھ اسی کے گھر میں بچی رہا کرتی تھی، لاہور میں جا کے۔ I don't know what to say and what not to say۔ بہرحال ایسا ہی تھا۔ And the end result is کہ ماں باپ کو اپنی جوان بیٹی کی میت ملتی ہے، بوڑھے کندھوں کو جنازہ اٹھانا ہے اپنی بیٹی کی۔ اللہ پناہ عطا فرمائے۔ والدہ ساتھ ہیں۔ السلام علیکم باجی۔ جی وعلیکم السلام۔ باجی کیا نام ہے آپ کا؟ غلام فاطمہ۔ یہ بیٹی جو ہے، جی آپ کی بڑی بیٹی تھی؟ جی بڑی بیٹی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ سمے کا کام کرتی تھی، سمے بیچتی تھی۔ کسی کمپنی کے ساتھ جاب کرتی تھی؟ کس کمپنی کے ساتھ کرتی تھی؟ جو ایک بھائی آتا تھا ان کے ساتھ وہ سمیں سیل کرتی تھی۔ سمیں جی سیل کیا کرتی جی تھی؟ سیل کیا کرتی تھی۔ تو 3 سال سے کیا کسی سٹال پہ کرتی تھی یا گھروں میں؟ نہیں، گھروں میں دیتی تھی۔ اچھا جی گھروں میں دیتی تھی، اور 3 سال سے کام کر رہی ہے۔ ایک انڈیویجول شخص کے ساتھ کام کرتی تھی، کمپنی کی ملازمہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ تو وہ کام کرتی تھی، صبح جاتی تھی اور شام کو گھر آ جاتی تھی، اور 6 مہینے سے بچی میری نہیں ہے آ رہی گھر، وہ دھوکے سے باہر لے گیا۔ ایک سیکنڈ بچی کو دہاڑی کتنی ملتی تھی؟ 15,000 کہتا تھا دیتا تھا۔ جی 15,000 کبھی دیتے تھے، کبھی نہیں دیتے۔ یہ وہی شخص دیتا تھا جس کے ساتھ یہ رہتا؟ جی کبھی دیتا۔ کیا نام ہے اس کا؟ ساجد علی شاہ۔ کیا ساجد علی نے اور آپ کی بیٹی نے نکاح کر لیا؟ نہیں، نکاح نہیں کیا۔ تو آپ کی بیٹی ساجد علی کے ساتھ ہی بغیر نکاح کے رہتی تھی؟ کتنے عرصے سے؟ 3 سال سے۔ 3 سال؟ جی 3 سال۔ 3 سال سے آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ نہیں رہتی؟ نہیں آتی تھی، صبح جاتی تھی کام سے اور رات کو آ جاتی تھی۔ کتنے عرصے سے وہ گھر نہیں آئی تھی؟ 6 مہینے ہو گئے۔ ناراض ہو کے گئی تھی؟ نہیں، ناراض ہو کے نہیں گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ وہ کہتا کہ ہم نے لاہور کام کرنا ہے، ادھر ہمارا کام ختم ہو گیا، ہم نے لاہور کام کرنا ہے، ہم لاہور جا رہے ہیں۔ لاہور چلے گئے، انہوں نے نہیں ہمیں گھر کا پتہ بتایا، نہیں ہمیں کوئی ایڈریس بتایا، نہیں ہمیں کوئی انہوں نے کال کی، نہیں انہوں نے ہمیں فون۔ بیٹی گھر کو پیسے شیسے بھیجتی تھی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ 6 مہینے کے بعد کچھ بھی 1 روپیہ نہیں بھیجا انہوں نے۔ یعنی وہ اب اپنی زندگی کی سواری؟ جی، تو انہوں نے میری بیٹی کو 6 مہینے کوئی عطا نہیں، کوئی پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں، کال ٹکر بھی نہیں انہوں نے کی۔ 6 مہینے سے آپ کی بیٹی لاپتہ تھی؟ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی آپ نے کہیں رپورٹ کروائی؟ نہیں، کہیں بھی نہیں رپورٹ کروائی۔ تھانے رپورٹ کروائی تھی تو انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے آپ 6 مہینے پہلے؟ نہیں، آج تھوڑے دن ہوئے جب قتل ہوئی ہے۔ جی 6 مہینے سے آپ کہہ رہی ہیں آپ کی بیٹی سے رابطہ نہیں ہے؟
जी ऐसा ही है? जी। तो आपने रिपोर्ट कब करवाई? ये नवा साल के आगे 3 दिन पहले। नया साल शुरू होने से 3 दिन जी, पहले? 3 दिन पहले। यानी आपने 27-28 दिसंबर को रिपोर्ट जी करवाई है। जी। अब आपको कैसे पता चला कि बेटी कत्ल हो गई है? तो अब हमें कॉल आई थी किसकी? थाने से, सफदा बाजार से। अच्छा जी। थाने से कॉल आई आपकी बेटी कत्ल हो गई है, तो आप पहुंचे। फिर हम इधर गए, थाने में गए, थाने वालों ने हमें उससे बोला कि हमारी बेटी कत्ल हो गई, वो हमारे साथ गए हैं। नहीं, एक सेकंड। आपको थाने से कॉल आई आपकी बेटी कत्ल हो गई जी। मेरा सवाल था कि आपने रिपोर्ट 27 दिसंबर को कैसे करवाई? आपको कैसे पता चला था कि कोई मसला हुआ तो अब हमें रिपोर्ट करवानी नहीं, चाहिए? हमने पहले रिपोर्ट, हमें कोई ऐसा पता नहीं था कि बेटी हमारी कहाँ है। आपने बेटी के कत्ल की? नहीं, कत्ल की नहीं, गवाह भी गायब होने की करवाई है। फिर वही बात आ गई ना जी। अगवा की रिपोर्ट पहले हो रही है या कत्ल पहले हो रही है? गवाह की रिपोर्ट पहले हो रही है, गवाह कत्ल यही की तो बात बात पूछ रहा 2 हूं तारीख को हुई कि है। अगवा की रिपोर्ट 6 महीने क्यों नहीं करवाई? अब करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? सर जी, हमें किसी ने बताया था कि लेकिन ये किसके साथ काम करती है ना, मैं इसी उससे पॉइंट पे पूछे। आपको लाना चाह रहा हूँ कि 6 महीने से आपकी बच्ची आपके साथ राब्ते में नहीं है। जी आपने किसी कानूनी इदारे को नहीं बताया, जी। आपने उसकी तलाश के लिए कोई काम नहीं जी। किया। अभी 27 दिसंबर को 28 दिसंबर को ही आपने उसकी तलाश क्यों शुरू की जैसी बच्ची मारी जाती है? सर जी, हमें ये कि हम बेटी हमें जो हमारी जो रिपोर्ट करवाई है ना, तो हमें किसी ने बताया है जो किसके साथ जो काम करती थी ना, उससे पता करें कि उसके पास ना हो। लेकिन इसलिए उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आप जमा करवाएं। हमने रिपोर्ट जमा करवा के तो उन्होंने कहा कि अब सारे रिश्तेदारों से तलाक कर लें, कहीं बेटी कहीं से मिल जाए। ये वो 6 महीने पुरानी तलाश अब आप कर जी। तो हमने कहाँ से भी ढूंढा, हमें कोई पता नहीं और चला। जैसे ही आप रिपोर्ट करवाती तो बच्ची मारी जाती? जी, बच्ची मारी जाती है। ये क्या बात है? पता नहीं, लेकिन हमें थाने से कॉल आई, लेकिन हम ना चुप करके बैठ गए थे, चलो कहीं ना कहीं आ रिपोर्ट जाए। करवाने के कितनी देर बाद आपको थाने से कॉल आई थी कि आपकी बच्ची मारी गई है? 4-5 दिन आगे पहले करवाई है, तो 2 तारीख को हमें कॉल आ गई है, नवे साल की 2 तारीख। यानी 27, 28 या 26 से 28 अभी आपको तारीख मेरे ख्याल से याद नहीं जी। तो वो आपने थाने में दरखास्त दी है यहाँ पर अपनी बच्ची की गुमशुदगी की जी, और 2 जनवरी को आपको फोन आ जाता है कि आपकी बेटी जी मारी गई। हाँ जी, कत्ल हो गई है। ठीक है जी। ये पिछले 6 महीने आपने रिपोर्ट नहीं की और बच्ची नहीं कत्ल सर जी, नहीं हुई। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मेरा मियाँ तो मैं खुद दिहाड़ी जाती हूँ, खुद मैं दिहाड़ी मेहनत करती हूँ, अपने दोनों बच्चों को पाल रही ठीक है घर तो बाहर हो गई सी। सर जी, हम कहते थे कि बेटा तुम इसके साथ काम छोड़ दो। कहती थी हमने इसके साथ ही काम करना है। हम बहुत समझाते थे, हमारे महल्ले वाले भी समझाते थे कि बेटा तुम ये काम छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है काम। कहती थी मैंने इनके साथ काम करना है, अब जो भी कही जाए मैंने इसके साथ काम करना है। लड़ती सी? जी, हमारे साथ लड़ती थी। क्या कहती? कहती थी माँ तीनों समझाए थे, तीना समझाए जी। किवें हो सकता? नहीं अंकल भाई जी, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, मेरे पास इतने कौन से बच्चे हैं, हमारे सर पे से इनके सर पे हम उठते पड़ते थे। तो इसलिए हम उसे समझाते थे कि बेटा हम काम नहीं करवाना चाहते, तो हम खुद काम कर। कहती मैंने काम करना, तुम जैसे भी कहे जाओ। माँ भी, मैंने भी समझाया, उसके बाबा ने भी समझाया, लेकिन वो नहीं समझी। कहती मैंने इनके साथ काम करना है। ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ? जी जी, चीखदी सी इत्थे मेरे जी। सुबह भी साड़ी हमारी खाना आराम होता था और शाम को भी वही खाना आराम होता था। कहती मैंने उनके साथ ही काम करना है, अब जो भी कही जाए मैंने। ये लड़के का नाम क्या? साजिद अली शाह। साजिद अली शाह। साजिद अली शाह से मुलाकात कहाँ पे हुई थी? साजिद अली शाह ने कत्ल की थी ना जी? उन्होंने वो कबूल कर रहे हैं, वो कबूल कर रहे हैं कि साजिद अली शाह की ही मोहब्बत में आपकी बेटी जो है वो माँ बाप से लड़के जाती थी जी कि मैंने इसके साथ काम करना है जी, और उसी के हाथों वो मुबैना तौर पर मारी भी गई है जी। साजिद अली शाह की उम्र क्या है? उम्र उसकी है 45 साल की है। वड्डा बंदा जी, वह बरे जी। बाल बच्चे जी, उसके पास 2 बेटे हैं। 2 बेटे? थोड़ी बच्ची तो माइनर है हाली जी, दोनों मियाँ बीवी पकड़े हुए हैं। तो ये आपकी बच्ची जो है साजिद अली शाह के घर ही रहती थी? जी, घर ही रहती। तो कहता मेरे घर ही रहती थी। बीवी के साथ ही रहती जी, बीवी के साथ ही रह रही थी। कहते हैं कि हमारे साथ, मैं उसे कहता था कि मेरे साथ काम चले, मेरे साथ करे, वो काम नहीं करती थी, तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसको मार दिया।
पहले मुझे ये बताएं कि साजिद अली जिसकी उम्र 45 साल है, आपकी बेटी जिसकी उम्र 17 साल है, 3 साल से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जी यानी जब आपकी बेटी से मिली थी तो बच्ची की उम्र 15 साल, जी साजिद अली की उम्र को 42 साल हो गई। जी एक 15 साल की बच्ची और एक 42 साल का लड़का, जी लड़का तो नहीं बंदा, जी ये मुलाकात कहाँ पे हुई थी? ये हमारे वो भी रायबंड का ही है? जी नहीं, वो कहता है कि मैं सैदपुर का हूँ, लाहौर। आप इनकी बच्चों की मुलाकात कहाँ हुई? आपकी बच्ची इधर घर आए थे, दरवाजे पे आए थे। यहाँ? जी दरवाजे पे आए थे, काम करवाने के, काम के लिए लेने, बच्ची को लेने ये आए। क्या बात है? ये मेरे मियाँ थे घर में, मैं घर में नहीं थी, किसी के घर में काम गई हुई उधर थी। नहीं जरा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम आप जी। वालिद हैं? हाँ जी। पहले तो अल्लाह दो कंपा जी, आमीन जी। अल्लाह ताला मन किसी ਨੂੰ ਔਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਖਾਵੇ। ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी। ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਉਦੋਂ 15 ਸਾਲ ਸੀ हाँ जी। ਤੇ ਇਹ 42 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਟੱਕਰ ਗਏ ਤੇ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਚੰਗਲੇ ਫਸ ਗਈ? ਉਹ ਜੀ ਐਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਮਾ ਵੇਚਦਾ ਬੂਹੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। ਸਿਮਾ ਵੇਚਦਾ ਬੂਹੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਘਾਤ ਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਖਕਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਿਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਪੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦੂਰ ਸਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕੰਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਘੱਟ, ਬੱਚੀ ਜਨਾ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ। ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਟਮਾਟਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ, ਟੋਰ ਦਿੱਤੀ? ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ 15,000 ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ 15,000 ਹਾਂ। ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ? ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈ। ਹਾਂਜੀ 15 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਓ ਹੈਗੇ ਸੋ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਕਿ 15,000 ਰੁਪਏ ਘਰ ਆਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਲੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਰਾਣੇ। ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ 400-500 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਲਈ ਦੀ। ਹਾਂ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਧੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਧੀ ਮਾਰੀ ਵੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਨਾਹ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਬੱਚੀ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਜੀ। 3 ਕੁ ਸਾਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਘਰ? ਕਦੀ 10,000 ਦੇ ਦੇ, ਕਦੀ 15,000 ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੰਦੀ। 15 ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ। 3 ਸਾਲ ਉਹਨੇ 15 ਹੀ ਕਮਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ 15 ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ 10,000 ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਜੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜਰਾ, ਬਾਜੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੋ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਬੈਗ ਬੁੱਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ? ਸਿੰਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ? ਬਸ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਈ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਪੁੱਤਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਫੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਹੁੰਦੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? ਪੰਜ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਚਾਹਨੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਿਆਂ? ਕੀ ਨਿਆਂ? ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ 30-40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਪੈਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਟੋਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਲ ਸ਼ਊਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਜੀ। ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਮਾਪਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਫਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਸਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੀ ਹਰ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਹਿਸਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਟੋਰਤਾ, ਸਿਰਫ 15,000 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਹੈ ਬਾਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਆ? ਜੀ, ਫੜਿਆ ਮੰਨ ਗਿਆ? ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਸਾ? ਕਹਿੰ- ਬੱਚੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੈਂ- ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕੰਡ ਕਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ? ਬੱਚੀ। ਜੀ, ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਠੰਡ ਛੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, मैं मार देती। साजिद अली शाह, इसकी बीवी ने भी मेरी बेटी को मारा है। उन्होंने ये हाथों से टीके, ये इधर निशान टीकों के, इधर टीकों के निशान पूरे बाजू पे। आपकी बेटी के? जी, इधर भी सारे निशान। नशा करती थी? नहीं, नशा नहीं करती थी। तो फिर टीके कैसे लग गए? पता नहीं कैसे, उन्होंने कहते हैं कि ये बीमार थी, हम टीके लगवाते रहे हैं तो इसलिए तो वो टीकों के निशान इधर भी, उंगलियों पे भी, इधर भी, और ये दोनों बाजुओं पे इधर भी निशान थे, और इधर भी, जी, इधर बीमारी कुटाई के निशान थे, और इधर भी निशान थे, और पीछे भी निशान थे, और इधर उसने थापा मारा है। कह रहा मैंने थापा मारा, थापा मार के, वो जो कपड़े धोने वाला थापा है, वो कहता मैंने थापा मार के मारा है। आपने खुद गुस्ल दिए बच्चे को? जी, मैंने खुद हॉस्पिटल में साथ गई हूँ। गुस्ल किसने दिए? गुस्ल इधर वो जो जब हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम उसका हुआ है ना, मैं खुद साथ थी। वो डॉक्टर ने ये क्या लिखा है, कोई नशा तो नहीं करती थी बच्ची, या नशे के कोई? वो सारे ये निशान थे ना, वो डॉक्टर ने लिखे हैं, लेकिन रिपोर्टें इनके पास है थाने वालों के। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि मोबाइल कंपनीज एक जानिब गवर्नमेंट कहती है कि कोई भी सिम बगैर बायोमेट्रिक्स के नहीं चलेगी, और सिम की फरोख्त जो है वो एक बहरहाल एक मुश्किल काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें पता चल रहा है, बल्कि हमें यहाँ तो नहीं, हर पूरे माशरे में नजर आ रहा है कि सिम आज भी सबसे आराम से मिलने वाली चीज है। आपको आकर पकड़ाई जा रही थी, ए लैला के अंदर नहीं पहन, मैंने नहीं तो लैला नहीं पहन, ए गोल्डन नंबर है लैला। रही बात चाइल्ड लेबर की, तो ये बच्ची 15 साल की उम्र में चाइल्ड लेबर पे गई थी। अगर चाइल्ड लेबर के कवानीन की अमलदारी होती तो आज कातिल एक नहीं, मैं यहां बैठकर बड़ी तकलीफ के साथ, शायद तमाम व्यूअर्स को ये बात बुरी लगे,
इसको विक्टिम ब्लेमिंग मत समझिएगा, कातिल एक नहीं, कातिल एक से ज़ायद। वो तमाम लोग जिन्होंने इस पॉइंट तक बच्ची को पहुंचाने में अपना अपना किरदार अदा किया, दे ऑल आर पार्टीज। खुदा के लिए इस चीज को समझने की कोशिश करें, वो माँ बाप जो चाइल्ड लेबर पर बिलीव रखते हैं कि ये बच्चे ये आपकी महफूज पनाहगाह होने थे, लेकिन आपने बहुत अर्ली इन बच्चों को इतना बड़ा कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो आपका अर्निंग हैंड बन जाएंगे। वो बता रहे हैं कि कुछ अरसे बाद वो बच्चे इनके काम के नहीं थे। अभी कितने बच्चे हैं आपके? और 2 बेटियां हैं, बड़ी एक बेटी तो फौत हो गई ना जी, एक बेटी है और एक वो क्या छोटी। करती है? घर में रहती है, पढ़ती है। उसको तो नहीं सिमें बेचने में? नहीं भाई नहीं, हम नहीं। अब भाई हम तौबा करते हैं, हम नहीं भेजेंगे। क्या कहना चाहेंगे उन माँ बाप को जो कहते हैं कि बाल बड़े हो गए ना, नौकरियां तो लो, नहीं छोटे छोटे भाई, अब बच्चों हम को? कहेंगे कि अब हम भी माँ बाप हैं, हमें तकलीफ हुई है, हमारी बेटी कत्ल हुई है। अब हम कहेंगे कि अब कोई भी माँ बाप है बच्चे को कहीं भी काम पे ना भेजे, अपने हिफाजत में रखें। भाई हम ये चाहते आपसे भाई तौबा करते हैं कि हम बेटी को नहीं कहीं भी भेजेंगे, लेकिन ये मेरे दिल पे बहुत बुरे तरीके से सदमा पहुंचा, तो हम इंसाफ चाहते हैं। अल्लाह ताला आसानी करने वाला है, अल्लाह ताला आफियत देने वाला है। जी नाज़रीन, आपके सामने रख रहे हैं, और यहाँ पर आने का बुनियादी मकसद जो है वो एक तो इनकी दादरसी के लिए इनकी आवाज़ बनना है, और दूसरे नंबर पर यहाँ आने के बाद जो हकायक पता चले वो आपके सामने रखना है। और ये वो चाइल्ड लेबर की बला है, मैं लिख के दे सकता हूँ। आप पार्लियामान में चले जाएं, आप एक MP MNA करके उठा लें, आप इनके घरों की जाके इंस्पेक्शंस करवा लें, आपको वहां पर इतने जितने घर में वो खुद फर्द है उससे ज्यादा आपको बच्चे काम करते हुए मिलेंगे। फौज जफर मौज। और यही लोग वो हैं जो क्लेम करते हैं कि जी हम चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। छोड़े यार, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो मुलाजमीन है उनके घरों की इंस्पेक्शंस करवा लें, आपको ट्रे उठाए बच्चे नजर आ रहे होंगे। और ये वो घर होते हैं, बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ा है, जहां पर माएं अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरों के बच्चे रहते हैं। इन माँ बाप ने तो अपने हाथ से भेजी थी, अल्लाह पनाह अता फरमाए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। रायगढ़ में है और एक बच्ची के 17 साल बच्ची जो कि हकीकी तौर पर माइनर है, उसके कत्ल के हवाले से कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है कि नई बात ग्रुप और नियो टीवी की आंखें और कान की जिम्मेदारी फ़हीम साहब यहाँ पर अदा करते हैं। फ़हीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मियां साहब। रायगढ़ बड़े गयूर लोगों का शहर है, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो हकायक यहाँ पर सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक एक माइनर बच्ची जो सिर्फ और सिर्फ 15 साल की उम्र में घर से रुखसत हो जाती है फ़िक्र मुआश में, और फिर इवेंचुअली 17 साल की उम्र में उसकी मैयत घर आती है। क्या मामला हुआ ये? मियां साहब, जैसा कि आपने इनकी बातें भी सुनी है और यही बात हमारे तक भी पहुंची है कि गरीब लोग हैं और इन्होंने जो बच्ची का वालिद है वो पाँव से माजूर भी है और ख़ुद भी वो दिहाड़ी करता है। उसकी जो बीवी है, जो बच्ची की वालदा है, वो भी घरों में काम करती है। तो गुर्बत सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है, गुर्बत कम करने के लिए इन्होंने अपनी बच्ची 15,000 रुपये माहाना जो है वो घरों में जाके जो लोग सिमें बेचते हैं उनके वाले की मोबाइल सिम जी। तो उसके बाद जब इतनी कम उम्र में और गुर्बत से निकल के बच्ची ने बाहर का माहौल देखा तो वो फिर इनके हाथों से भी निकल गई। तो बाकी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन जो है 3-1 साल तो इस बच्ची ने अपने घर वालों को, मेरे ख्याल से 2.5 साल के करीब जी इस बच्ची ने उनका सहारा बनी। बिल्कुल ऐसे ही। और 2.5 साल बाद बताते हैं गुज़श्ता 6 माह पहले बच्ची अपना घर ही छोड़ गई और माँ बाप के साथ अमली तौर पर लाताल्लुकी कर ली। और पेरेंट्स की आखिरी मुलाकात 6 माह पहले की बताते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। क्या वजह, इसकी क्या वजह सामने आई है? पुलिस क्या कहती है?
میاں صاحب इनके ना मुख्तलिफ इलाकों में ये जो लोग काम करते हैं ना, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कंपनी के साथ। तो रायवन में उनका जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो उसके बाद इनको इलाका लाहौर का मिल गया जहाँ पे उसकी रहाइश थी, और बच्ची ने अब माहौल बाहर का देख लिया था, तो उसने तय कर लिया था कि मैंने अब इस गुर्बत में या इस कच्चे मकान में नहीं रहना। चूँकि उन्होंने उसे कोई सब्ज़ बाग दिखाए अपने साथ ले जाने के लिए, बाकी भी चीज़ें जो तफ्तीश में चल रही हैं, मज़ीद मुलज़म जो है वो गिरफ़्तार भी हो चुका है, उसकी बीवी भी जो है वो गिरफ़्तार है। तो जब उसने बाहर का माहौल देखा ना, तो उसके बाद फिर वो इनके काबू से बाहर हो गई है। 15 साल की बच्ची थी और 42 साल का मर्द था जिसके साथ ही बच्ची गई थी, और अब बच्ची की उम्र 17 साल के करीब है और 40-45 साल जो है 43-45 साल उस मर्द की उम्र है। ये बच्ची किस कैपेसिटी में उनके साथ रह रही थी, कुछ इस बारे में भी हकायक सामने आए हैं? हकायक मियाँ साहब यही हैं कि बच्ची ने माहौल को ऑब्ज़र्व किया ना जिस तरह, तो वो इस माहौल में दोबारा आना नहीं चाह रही थी। उसके लिए जो भी रास्ता उसके लिए जो भी रास्ता था, अब उसे आगे जाना था और रंगीनियाँ देखनी थी और चीज़ें जो है वो दूसरी तरह उसकी चल रही थी। तो उसने, जैसा कि उसकी वालदा ने भी बताया कि वो लड़के झगड़ के इसरार करके जो है ना, वो पहले तो घर आ जाती थी, लेकिन 6 माह पहले जब वो यहाँ से लाहौर की तरफ मूव हुए हैं तो फिर उनके साथ घर का खर्चा भी बंद कर दिया। हाँ जी, फिर उसने 6 माह से घर का खर्चा भी बंद कर दिया है, तो उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। फ़हीम भाई, क्या आखिर ऐसी वजह क्या बनी कि खातून को कत्ल ही करना पड़ गया? पुलिस को उसने कोई बयान वगैरह अपना तो दिया होगा अभी तक? नहीं, वो मुलज़िम ने जो बयान दिया है वो यही बता रहा है कि जी ये मेरे साथ काम पे नहीं जा रही थी, बीमार थी, तो मैंने ज़िद की है, लेकिन चीज़ें कुछ और हैं जो अभी ये इन्वेस्टिगेशन में अभी इन्वेस्टिगेशन में हकायक सामने आएंगे। उस बच्ची के जिस्म के ऊपर इंजेक्शन के भी जो निशानात हैं, तशद्दुद के भी निशानात हैं, तो ये चीज़ें किसी और तरफ लेके जा रही हैं। तो इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही है। अब कबल अज़ वक्त हम इसके ऊपर सिर्फ क्या असर कर सकते हैं। अल्लाह पनाह अता फरमाए। मुझे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि लाहौर के गिरदो नवा के अजला और बिलखसूस लाहौर के मज़ाफ़ात में भी ये एक चाइल्ड लेबर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ से बच्चों को मुलाजमत के लिए लेकर जाया जाता है, थोड़े पैसे देकर उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है, और उसके नतीजे में घर के छोटे जो हैं वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, बिल्कुल, और फिर ख़तरे में भी होते हैं। इसके हवाले से क्या किया जा सकता है? कोई आपको अमली तौर पर यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया का या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कोई इनिशिएटिव, कोई इक़दाम नज़र आता है कि अवेयरनेस पेरेंट्स को दी जा सके कि ये बच्चे आपका एसेट है, कि आपका फ्यूचर है, इनको ज़ाया करना मुनासिब नहीं? मियाँ साहब, आपकी बात में इसका जवाब है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त जो है वो तरबियत के ऊपर है, अवेयरनेस के ऊपर है। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि काम करे। कानून तो हर चीज़ के लिए मौजूद है, लेकिन इस मुल्क में कानून जो है वो तोड़ना, वो गरीब के लिए तमाम कानून है। अनफॉर्चुनेट जी, मैं बिलीव करता हूँ और मैं नेशनल स्क्रीन के थ्रू ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कानून पर अमलदारी उस वक्त मुमकिन हो सकेगी जब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पर भी काम करें जिनको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता रहे। हमने चाइल्ड लेबर के जितने भी शाखसाने देखे, मैं इसको भी चाइल्ड लेबर का एक शाखसाना समझता हूँ, हमेशा एक चीज़ सामने यही आती है कि पेरेंट्स जो हैं उनको मुतासिरा शख्स समझकर उनके साथ कभी भी बात नहीं की जाती है। व्हाट आई बिलीव कि कानून के मुताबिक उन वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो मासूम और छोटे बच्चों को उनकी बहुत छोटी उम्र में घर से निकाल देते हैं, घर से बाहर भेज देते हैं, और वो अनअटेंडेड अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर उसके बाद जिन्हें लाई गली उनके नाल टुर चली वाला मामला होता है। बट इट इज़ अ हार्श रियलिटी कि हमें ये फेस करना पड़ता है। हो सकता है आप लोगों को मेरी ये बात बुरी लगे, बट सोल्यूशन यही है। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।